And a very good morning to all of you, and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. So basically, I hope you are aware from Monday to Thursday, 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. Today is 6th November, that is Monday, and we are here with the Hindu analysis of 6th November. Okay, so these are the two important articles on the first page. The first one talking about the elections campaign that has concluded in Mizoram and Chhattisgarh. Then here is an article talking about Pradhan Mantri Awas Yojana. Okay. So let's talk about this one. So I hope you are aware. So the election is actually going to happen in the state of Mizoram and Chhattisgarh. And the last date for campaign was over. So 40 member legislative assembly. So Mizoram is having 40 MLAs. Okay. So there will be elections on the 40 seats of legislative assembly in the state of Mizoram. Similarly, 20 MLA actually in the state of Chhattisgarh. Okay, so 20 MLA seats, constituencies are there. So just have an idea about it. So let me show you where exactly it is. So can you please tell me who is the current Chief Minister of Chhattisgarh and who is the current Chief Minister of Mizoram? Can you please name it? I'll be very happy to know this. So Chhattisgarh is here and here is the Mizoram. Okay, yes. So Mizoram is having 40 seats and currently the majority is with actually MNF. So Mr. 𝗟𝗲𝗴𝗪𝗛 is actually the current Chief Minister of Mizoram. Okay. Okay. So 27 seats they have. कितना चाहिए होता है 40 seats is there, so you need crossing the half. So half इसका कितना होगा 40 by 2 is 20. So it means the ruling party you need a majority of 21 to have your own chief minister. ठीक है. Okay, so half cross करना चाहिए. Similarly in Chhattisgarh actually total 90 seats है लेकिन अभी 20 पे election होगा. ठीक है, मतलब phased manner में हो रहा है ना. So total 90 seats are there. And so out of these 20 seats, if you divide it by 2, it becomes 45. It means the ruling party should have at least 46 seats in total. Okay. So that is what you should be knowing it. And currently the Congress has 71 seats. Okay. Okay. Yes. So Mr. 𝗏𝗵𝗎𝗓 𝗏𝗏𝗀 is actually the Chief Minister of Chhattisgarh. Okay. So these things you should be knowing about it. Okay. On the first page, there was another article talking about Andhra Pradesh alters PMAY name, center puts 4,000 crore funds on hold. देखो एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, प्राइम मिनिस्टर ये प्रधानमंत्री आवास योजना, which is actually called as housing for all scheme. Okay, so to provide houses. Okay, now so you have to understand one thing. That PMAY को दो हिस्सा में बांटा गया, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण है ना, ग्रामीण मीन्स रूरल एरियाज में. ठीक है, and urban, if there will be urban, that will be in urban areas. Okay, now the Andhra Pradesh government has slightly changed the name, so Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen, so they have actually renamed it as Pradhan Mantri Awas Yojana YSR. So YSR is actually the political party of the current Chief Minister of Andhra Pradesh. Okay. So that is why it was in the news. Then the source said that the state government's decision has resulted into Union Finance Ministry putting on a temporary hold 4,000 crore rupees. So actually center से जो पैसा आता है, so center sends money to the state. So that has been put on hold, यानी रोक लगा दिया गया temporarily. Put on hold temporarily. Okay, so that is what it says. So just have an idea. प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह पता होना चाहिए. You should be knowing about that. Okay, first page में एक और आर्टिकल था, लीव बेनिफिट्स फॉर वुमेन इन आर्म फोर्सेस मेड यूनिफॉर्म, यानी सबके लिए बराबर कर दिया गया. दैट इज व्हाट यूनिफॉर्म यहाँ पे क्या मतलब इक्वल फॉर एवरीवन है ना, उस सेंस में. ठीक है. ओके, सो एक्चुअली आई होप यू आर अवेयर. सो वुमेन से रिलेटेड क्या क्या लीव हो सकता है. सो मैटरनिटी रिलीफ, मैटरनिटी लीव इज द फर्स्ट वन, आई मीन द मोस्ट फेमस वन. So when the lady is pregnant, she needs leave and all. I hope you are aware. Child care, child adoption leave. अगर child adopt किया तो उसके लिए leave, ये child care के लिए leave चाहिए है ना. Soldiers, sailors and all है ना. So for soldiers, sailors and air warriors on a par with officers. On a par मतलब बराबर इससे है ना. At par with या on par with. ठीक है.
So that is what it was saying, inclusive participation, so that participation can be there. So the idea of Nari Shakti, or in English we call it as women empowerment. ठीक है. Okay. At present, women officers get maternity leave for 180 days with full pay and all. ठीक है. Child care leave 360 days का. So these are the things they are talking. Leave of 360 days granted in total service. ठीक है. So these are the things. Okay. एक और चीज चूंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में, that is why I am talking about it. And this is about the Delhi pollution and all. So primary schools to remain shut till November 10. Actually यहाँ पे दो editorials आए हैं. एक editorial है, एक edit page article है, दोनों जो है वो दिल्ली के pollution पे based है. And that is why we'll be discussing about it. Air quality index वगैरह थोड़ा सा जानना होगा आपको, ठीक है. Okay. So actually pollution has increased. अक्टूबर नवंबर मंथ में खास के बढ़ जाता है. And entry of trucks got restricted under graded response action plan. GRAP होता है, ये पूछते हैं कभी कभी. So what is GRAP? So basically it is a tool to fight the pollution in Delhi. Okay. अब देखो ये होता है air quality index. Okay. Released by CPCB, Central Pollution Control Board. Okay, so first please tell me, Central Pollution Control Board, is it a statutory body, constitutional body, कौन सी body है? If it is a statutory body या constitutional body जो भी है तो आप बताओगे कहाँ से लिया गया है. So which law talks about it? So basically let me tell you, it's a statutory body. And please tell me that Central Pollution Control Board is actually under which act? कौन से act से आता है ये? Okay, that you are supposed to tell me. Okay. तो एक्चुअली उसको जो है ना डिफरेंट इसमें बांटा गया कलर कोड में टू टेल कि कौन सा सबसे डेंजरस है, ये कौन सा सिंपल है, कौन सा डेंजरस नहीं है. सो अगर 0 से 50 के बीच है सो इट्स गुड, फाइन, ठीक है, मतलब ठीक है, एनवायरमेंट अच्छा है. 51 से 100 है तो सेटिस्फैक्ट्री, मतलब ठीक ठाक है, चलेगा. माइनर ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट हो सकता है, कुछ सांस लेने में कुछ लोग तकलीफ हो सकती है. देन 101 to 200 है सो इट्स मॉडरेट. ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट टू विद लंग्स, एस्थमा एंड हार्ट डिजीज, जिनको लंग्स की, एस्थमा की, हार्ट की डिजीज है उनको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है. द नेक्स्ट वन इज 201 to 300, दैट्स पुअर. मतलब ये है कि ये अच्छा नहीं माना जाएगा. ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट है, हो सकता है, और ऑन प्रोलॉन्ग एक्सपोजर कोई कॉमन मैन को भी अगर बहुत देर तक अगर उस एरिया में रहेंगे तो उनको ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट हो सकता है. देन 301 से 400 वेरी पुअर रेस्पिरेटरी इलनेस और प्रोलॉन्ग, तो ये बीमारी हो सकती है बाज़ाब्ता एकदम. So even a healthy person can actually get affected. Then 401 to 500 severe affects healthy people, serious impact. This is the most deadly one. और अभी कई जगह places में दिल्ली में ये सब रेंज में भी आ गया है, ये सब रेंज में. And that is why you should be knowing it. Yes, there was a judgment of Supreme Court, MC Mehta case. I hope you are aware where Supreme Court has said that right to air, right to clean air is a fundamental right. इसे आपने सुना होगा. Is a fundamental right. अंडर आर्टिकल, कौन से आर्टिकल बताइए? यस, समवन हैज रिटन, यस हर्षवर्धन, वेरी गुड, अंडर आर्टिकल 21, ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग अबाउट इट, ठीक है. तो जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं 415 फ्रॉम 415 एंड ऑल, देखो 400 क्रॉस कर गया है ना, ये सब रीजन में यहाँ है, ये दिल्ली के बहुत सारे एरिया में यहाँ पर है सेवियर. सो इट विल इवन अ हेल्दी पीपल विल गेट अफेक्टेड. जो एकदम यंग हेल्दी है, जिसको कोई बीमारी नहीं है, उसको भी बीमारी हो सकती है, बिकॉज इट्स एक्चुअली दिस. यस, MC Mehta case was after Bhopal gas tragedy and all. Yes, this is important. हाँ, आर्टिकल 21. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पे गया, विच एक्चुअली कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. अच्छा, ये कौन से लॉ के अंडर बना है, गो एंड फाइंड आउट, ठीक है. हाँ, एब्सोल्यूट लायबिलिटी वगैरह कंसेप्ट वहीं से आया था, MC Mehta केस, गुड. हाँ, सो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए कौन से एक्ट से बनाया गया? इट्स अ स्टैच्यूटरी बॉडी व्हिच कम्स अंडर फ्रॉम व्हिच लॉ. तो इसको फाइंड आउट करना, बिकॉज एयर पॉल्यूशन रिलेटेड चीजें न्यूज में. अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये है ITO का. ITO एक प्लेस है दिल्ली में, आप जाओगे तो यहाँ पे सर्च कर सकते हो CPCB का. सो ITO इज इनकम टैक्स ऑफिस, जो कि दिल्ली का ऑलमोस्ट सेंट्रल लोकेशन है, वन ऑफ द सेंट्रल लोकेशन. यहाँ पे 400 दिखा रहे हैं, वेरी पुअर. तो PM 2.5 लेवल इतना है, 10 इतना है, NO2 इतना है, NH3 इतना है, SO2 ओजोन, ठीक है. अब देखो, कुछ लोग पूछेंगे सर ओजोन तो अच्छी चीज होती है. सी यू हैव टू अंडरस्टैंड इट दैट ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन इज कंसिडर्ड एज बैड. आपको पता है, जैसे आई होप यू आर अवेयर दैट एक्चुअली मैंने आपको कुछ दिन प्लेट क्लासेस में पढ़ाई भी था. अर्थ होता है, ठीक है, उसके ऊपर ट्रोपोस्फेयर होता है, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर होता है, राइट. सो वेयर डू यू फाइंड ओजोन लेयर?
यू विल फाइंड ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर मोस्टली, है ना, ओजोन लेयर, इसको हम लोग गुड ओजोन भी कहते हैं, ठीक है, गुड ओजोन, ओके, विच इज हेल्पफुल इन एक्चुअली नॉट अलाउइंग अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन, है ना, अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर ओजोन ट्रोपोस्फेयर में यानी अर्थ सरफेस के आसपास यहां पर है ओजोन, दैट इज कॉल्ड एज बैड ओजोन एक तरह से, इसलिए ये सांस लेने में तकलीफ देगा, ठीक है, ये तो स्ट्रेटोस्फेयर में है ना, बट हियर दैट व्हाट वी कॉल इट एज बैड ओजोन। सो देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ गुड ओजोन एंड बैड ओजोन। सो इफ वी आर हैविंग ओजोन इन दिस रीजन, यानी जहां पर लोग रहते हैं इन द ट्रोपोस्फेयर रीजन, इट इज कंसिडर्ड एज बैड, ओके, ठीक है। अच्छा, ये दोनों आप समझते हो, PM 2.5, PM 10, यू अंडरस्टैंड दिस? PM 2.5, what do you mean by this? PM means particulate matter, okay? 2.5 का मतलब होता है 2.5 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है इसका, ओके, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट एग्जैक्टली इट इज। अगर लिख रहे हैं PM 2.5, इसका मतलब जो पार्टिकल है उसका जो डायमीटर है वो है 2.5 माइक्रोमीटर, इट मींस 2.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, ये है, ओके, -6 आप समझते हो, मैथ्स बेसिक समझते होगे। सिमिलरली PM 10 उससे बड़ा हो गया, PM 7.5 उससे बड़ा हो गया। सो द मोस्ट डेंजरस इज PM 2.5। द स्मॉलर द पॉल्यूटेंट इज द मोर डेंजरस इट इज। क्यों? इसलिए बिकॉज इट कैन इजिली गो इनसाइड आवर नोज एंड कैन अटैक द लंग्स, ठीक है। सो PM 2.5 सबसे ज्यादा घातक होता है PM 7.5 से, देन PM 10, ओके, लाइक दैट, ठीक है, यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। सो द स्मॉलर द पार्टिकुलेट मैटर इज द मोर डेंजरस इट इज, ठीक है, सो बी केयरफुल। अब देखो ये जैसे आर्टिकल है GRAP, अगेन आई हैव टोल्ड यू, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान स्टेज 4 इंप्लीमेंटेड इन दिल्ली अमिड सीवियर एयर पोल्यूशन, है ना, सीवियर है, देखो यहाँ लिखा ना सीवियर, इस रीजन में आ रहा है बहुत जगह, सो दैट इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। तब क्या क्या होता है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में? जैसे फॉर एग्जांपल रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रक्स इनटू दिल्ली, यानी दिल्ली में ट्रक्स वगैरह नहीं आएगी एक्सेप्ट जो एकदम एसेंशियल सर्विस है। अब जैसे आलू प्याज वगैरह आ रहा है दिल्ली के लोगों के लिए, तो लाना पड़ेगा ट्रक से, बट अदरवाइज जो क्रॉस कर रही है ट्रक वो नहीं, ठीक है। आई शो यू, डू नॉट अलाउ नॉन रजिस्टर्ड LCV ना व्हीकल्स एंड ऑल, ठीक है। सो बहुत सारे व्हीकल्स को अलाउ में रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, हैवी गुड्स वाले ट्रांसपोर्टेशन गुड्स। फिर फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन वगैरह कहीं पे और तो उसको रोक लिया जाएगा, कहीं डेमोलिशन ड्राइव चल रहा है उससे भी पॉल्यूशन होता है, कोई कंस्ट्रक्शन, बड़े कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, बिग फ्लाईओवर्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, दैट इज स्टॉप्ड, वो सब रोक दिया जाता है। देन क्लास 6 से 9 तक के बच्चों को कंसिडर कंडक्टिंग क्लास फॉर 6 and 9, क्लास 11 ऑनलाइन इंस्टेड ऑफ फिजिकल, है ना। तो ये सब बता रहे हैं कि ये सब बच्चों को जो है एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस कराया जाए, ठीक है, ये सब होता है ताकि फिजिकली बच्चे नहीं प्रेजेंट हो तो पॉल्यूशन कम होगा, घर से बाहर कम लोग निकलेंगे। अलाउ पब्लिक म्युनिसिपल प्राइवेट ऑफिसर्स टू ऑपरेट एट 50% स्ट्रेंथ। इवन सरकारी दफ्तर भी अगर बहुत सारे लोग घर से बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं तो और अच्छी बात है, म्युनिसिपल प्राइवेट ऑफिसर्स, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग पुश्ड। स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सप्लोर इमरजेंसी मेजर्स एंड ऑल, एंड सो दीस आर द थिंग्स। अब देखो उसके लिए वेस्टर्न और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाया गया, आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस। ये वाला और ये वाला देखो होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये दिल्ली है, अब यहाँ से कोई ट्रक आ रही है, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल ग्वालियर से ऐसे आ रही है और इसको जाना ऊपर, तो ऐसे दिल्ली होके जाएगी मान लो फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, और पॉल्यूशन होगा, है ना। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन दिया गया, एक वो थे वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, ऐसे करके निकल जाना, और दूसरा जो सॉल्यूशन दिया गया वो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, यानी ऐसे करके निकल जाना, ठीक है। सो बाय अवॉइडिंग दिल्ली, सो दिस इज ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे एंड दिस वन इज वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस, ये वाला, ओके। हाँ, जैसे ये वाला, जैसे ये ना ईस्टर्न पेरिफेरल है ना, देखो यहाँ से पलवल से ऐसे कट के इधर चला जाएगा, दिल्ली को अवॉइड कर दिया, दिल्ली है इसको अवॉइड करके, ठीक है। सिमिलरली वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ऐसे काट के बनाया गया ताकि मेन दिल्ली अवॉइड हो जाए, सो इसलिए ताकि जो बहुत सी ट्रक्स आती है वो दिल्ली को हाईवे ना बनाते, उसे अवॉइड कर जाए, यस, ओके। सो दैट इज व्हाट इट वाज इन द न्यूज, है ना। Okay, one more thing, I hope you are aware we are running a crash course every day at 9 PM on our YouTube and app both, so do join it. एक और चीज ये कि today we'll be having session with us, ठीक है, तो with me actually. So आज मैं डिस्कस कराऊंगा नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे अवार्ड्स बहुत सारे हैं, जैसे नोबेल प्राइज हो गया, ऑस्कर हो गया, ठीक है, सो वेरी फेमस अवार्ड्स, पद्मा अवार्ड्स हो गया, ठीक है। सो वी विल डू ए सॉर्ट ऑफ अ रिवीजन, ठीक है, तो उसमें आप आना जरूर, दैट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। व्हेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अगर आपने देखा होगा रिसेंट ईयर्स में दे आर आस्किंग फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है।
सो दैट कैन बी आज। फिर नेशनल इंटरनेशनल न्यूज पर हो सकता है मैं कुछ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन वगैरह भी लाऊं। सो प्लीज डू ज्वाइन इट एट 9 PM, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। और ये 2025 का कोर्स है, वी आर प्लानिंग इट, आई मीन दोज हु आर प्लानिंग इट फॉर नेक्स्ट ईयर, you can call on this number 9538895678. Okay, yes. Now let's talk about again editorial, giving the urban India a better life. Again we are talking about the same pollution and all. So उससे पहले question है which actually is discussed in this editorial, that is why I'm asking it. World Cities Day कब मनाया जाता है? And if possible please tell me the theme of 2023. 2023 का theme क्या था? What is the right answer? Anyone? So the right answer is actually yes, 31st October. So A is the right answer to this question. Yes, हाँ. तो ये बता रहे हैं the theme of World Cities Day was 31st October को जो हुआ था, financing sustainable urban future for all. ठीक है. So that is what he is talking about and all. एयर पोल्यूशन इज टेकिंग अवे 10% ऑफ आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। किसी किसी केस में 10% हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी घट जा रही है। जैसे मान लीजिए किसी को 70 साल जिंदा रहना है तो 7 साल उसका कम हो जा रहा है बेचारे का। सो दैट इज व्हाट दीज आर द थिंग्स। देन ही इज सेइंग दैट ही इज कोटिंग अ रिपोर्ट, उसमें ये बताया जा रहा है कि 39 आर, ये बहुत सीरियस बात है, आउट ऑफ 50 पॉल्यूटेड सिटीज ऑफ वर्ल्ड 39 अपने ही कंट्री में, ठीक है, 50 सिटीज अगर आप पॉल्यूटेड सिटीज निकालोगे टॉप 50 तो 39 इंडिया ही में मिलेंगे। सो ऑफ कोर्स इट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। Pollution directly affects the health of people with an average India loss of 5.3 years. Life expectancy for the resident of Delhi it's 11.9. अब देखो क्या बता रहे, ऑन एन एवरेज इंडिया लेवल पर अगर आप बात करो तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है पॉल्यूशन के कारण, बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन 5.3 ईयर्स हर आदमी की जिंदगी घट रही है। मान लीजिए किसी को फॉर एग्जाम्पल 70 साल जिंदा रहना है तो 5.3 घटा दो, ठीक है, सो 64.7 ईयर्स आएगा, इतना वो जी पा रहे हैं। और दिल्ली केस में 11.9 लगभग यानी 12 ईयर्स कम हो जा रहा है। यानी मान लो एक आदमी को 70 ईयर्स जिंदा रहना था तो 50 to 8 ईयर्स जिंदा रह रहा है ऑन एन एवरेज। आई मीन दिस इज ऐसे डेथ एंड लाइफ इज इन द हैंड ऑफ गॉड, बट यस ऑन एन एवरेज दे आर कैलकुलेटिंग इट कि यस दिस इज सो मच। आई मीन दिल्ली के केस में तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे कि इतनी लोगों की जिंदगी घट जा रही है। बिकॉज क्या हो सकता है, एस्थमा सांस लेने में प्रॉब्लम, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है ना, हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट में, लंग्स में, और ही पता नहीं क्या क्या असर कर सकता है। ओके, so these are the things you are talking about. Recently a media report labeled pollution in Mumbai as death by breath due to unsatisfactory air quality. Even मुंबई में भी कहा गया कि अच्छा pollution नहीं था, अच्छा ये नहीं था air. The expansion of grey infrastructure. So बहुत सारे वो problems बता रहे हैं, जैसे the need is not to turn sustainable and ecological urbanization and all, है ना। What the focus is real. देखो grey जैसे cement है ना, मतलब cement grey होता है कि नहीं, infrastructure, खूब बड़े बड़े bridges, मकान, buildings खूब बनाया जा रहा है। अब ना the question is yes we have to do controlled infrastructure development, है ना। So ठीक है, redevelopment are the major reasons and all, concrete batching, polluting industrial units and all. So these are the things being talked about. It is estimated that motorized transport alone is the cause for 60% of population. हाँ, urban pollution. अब तो क्या हो रहा है, motorized transport की वजह से बहुत पॉल्यूशन होता है, जैसे ऑटोमोबाइल्स, कार्स वगैरह से ना, कार, मोबाइल, बस, ट्रक, इस सबसे, कार से खास करके बहुत सारी अगर कार हो जाए किसी सिटी में, जैसे दिल्ली में बहुत सारे कार्स है, you must be aware of that, and this is also one of the reason for pollution and all. The green lungs of the city, water bodies, urban etc. are actually have all reported shrinkage. Yes, एक और प्रॉब्लम है कि जितने भी चीज इन्वायरमेंट को फायदा देती है सब छोटे कम हो रहे, श्रिंकेज हो रहे हैं। क्या, जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट या अगर ट्रीज वगैरह है तो उसको काटा जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। वाटर बॉडीज ऐसा कहा, इंक्रोचमेंट ऑन वेटलैंड्स, लेक्स हो रहा है, उसको साइज छोटा हो रहा है लेक का, वेटलैंड का। फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं शहर में, खास के ग्रीन कवर कम हो रहा है। सो दीज आर एक्चुअली अफेक्टिंग अस, है ना। इवन एज ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर हैज सीन रैपिड एक्सपेंशन। ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर वही, ग्रे मतलब सीमेंट से रिलेटेड, जो चीज सीमेंट से बनती है ना। अब इससे पॉल्यूशन होता है सीमेंट से, सो हेंस द प्रायोरिटीज नीड टू बी सेट राइट। ड्यूरिंग द विंटर इन नॉर्थ इंडिया देयर इज अ हल्ला बोला ओवर द बर्निंग एंड ऑल। अब देखो क्या होता है, नॉर्थ इंडिया में एक पराली बर्निंग या स्टबल बर्निंग का इशू होता है। दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट एज बीइंग द कॉज ऑफ स्मॉग। However, this is partially true. ठीक है, पर एक चीज समझो, देखो एक वर्ड होता है स्मॉग, है ना, स्मोक प्लस फॉग इस तरह लिखते हैं, या स्मोक इसको ऐसे डिफाइन करें, स्मोक प्लस पार्टिकुलेट मैटर। ओके,
तो देखो एक्चुअली क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर हियर इज दिल्ली, ठीक है, यहाँ पे पंजाब हरियाणा है, तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, ऐसे लोग एलिगेशन लगाते हैं कि स्टबल बर्निंग होता है, जैसे आफ्टर जब हार्वेस्टिंग हो गया उसके जो बचा उसको जला देते हैं लोग। अब उससे क्या होता है, यहाँ से अगर विंड आ रही है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगर इधर से विंड आ रही है, तो ये वाली विंड जो है इसको पुश करके यहाँ ले जाती है, और दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन होता है। ट्रू, इट इज ट्रू, बट दिस इज नॉट द ओनली रीजन, ठीक है, ये एक कारण हो सकता है, लेकिन सारा कुछ इसी पे दोष दे देना कि स्टबल बर्निंग की वजह से होता है, ये भी सही नहीं है, ठीक है। तो देयर आर अदर रीजंस आल्सो, ऑटोमोबाइल, ठीक है, इससे पॉल्यूशन होता है, ओवर कंस्ट्रक्शन। सेकेंड थिंग, दिल्ली एनसीआर के आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, you must be aware of that. That is also the reason for pollution. Over cars, over number of automobiles, है ना, these are the reasons also, है ना, ठीक है। तो अपने दिखा रहे हैं कि कमर्शियल व्हीकल्स कितना, while this figure is not only limited to urban area, it is clear how much growth etc and all, ये सब बता रहे हैं, है ना, more number of cars, construction activities, ठीक है। So these are the things, है ना, construction activities which are on the rise is almost contribute roughly 10% of air pollution। तो construction activities से 10% air pollution होता है। सो ओवर कंस्ट्रक्शन भी नहीं होना चाहिए, मतलब वी हैव टू डू व्हाट वी कॉल इट एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट या लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये वाला वर्ड आपने सुना होगा, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये सब काफी बात कही है ना। अब इसका कुछ सॉल्यूशन वगैरह भी पता होना चाहिए ना। देयर इज अ कंपीटिंग नीड टू हैव एन अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी फॉर सिटी बिल्डिंग वेयर द फोकस इज ऑन मोर ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, है ना, हैविंग सिक्योर पेडेस्ट्रियन, बहुत सारे एक्चुअली अल्टरनेट बताया जाता है। जैसे एक ये बताया जाता है, जैसे आपने सुना होगा एक कॉन्सेप्ट है काउंटर मैग्नेट, आपने सुना है ये, मतलब क्या है, एक शहर को इतना बड़ा नहीं कर दिया जाए कि सारी आबादी वहीं जाके रह जाए, तो काउंटर इधर को शहर बना जाए, इधर को शहर बना जाए, ठीक है, ताकि लोगों को काउंटर जगह पे अट्रैक्ट करे, यानी जो ये सब सिटी उसमें भी सारी फैसिलिटी दे दिए जाए। वाई आर एवरीवन गोइंग टू द दिल्ली, है ना, सो इसलिए सो टू रिड्यूस द पॉल्यूशन पॉपुलेशन, तो जब आबादी कम होगी तो पॉल्यूशन भी कम होगा। सो वन आइडिया दैट कैन बी देयर। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे वी नीड टू इनकरेज पेडेस्ट्रियन वॉकिंग, बाइसाइकिल लेन्स एंड ऑल, ठीक है। अब क्या है कि मोटरसाइकिल कार से ज्यादा साइकिल को प्रेफर किया जाए। अब एक्चुअली होता क्या है, सो अगर कोई साइकिल चला गया तो उसको लोग मजाक बनाने लगते हैं, बट सी साइकिल इज अ वेरी गुड थिंग फॉर योर हेल्थ पर्पस, फॉर कंट्रोलिंग पॉल्यूशन, है ना, सो मेनी अदर रीजंस। तो इसको ना बढ़ावा देना चाहिए बाइसाइकिल्स एंड ऑल को, ठीक है, दैट इज ऑल्सो। अगर पास में जाना 1-2 किलोमीटर दूर किसी का ऑफिस है, मान लीजिए घर है, इसका ऑफिस यहाँ पे, साइकिल से चला जाए, ठीक है, 1 या 2 किलोमीटर दूर है, तो सो वाई नीड कार एंड मोटरसाइकिल, चला जाए साइकिल से, पैदल अगर आधा 1 किलोमीटर तो पैदल भी जा सकते हैं। सो वी नीड टू प्रोमोट दैट ऑल्सो। सेकेंड थिंग इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाती है, यानी गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट, जैसे बसेस हुआ गया, है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, जैसे बस हो गया, मेट्रो हो गया, ठीक है, एक बार बहुत सारे लोग को ले जाएंगे, है ना। सो दीज आर द थिंग्स। फिर ये सब टाइप की चीज होगी, यानी पर्सनल कार से ज्यादा बस, मेट्रो, लोकल ट्रेन, जैसे मुंबई में लोकल ट्रेन चलता है, वो सब टाइप का समथिंग नीड्स टू बी प्रोमोटेड, है ना। अगर वर्क फ्रॉम होम हो सके सो दैट्स द बेस्ट थिंग, ठीक है, अगर वर्क फ्रॉम होम या स्टडी फ्रॉम होम समथिंग लाइक दैट हो सके, खास की जब पॉल्यूशन बढ़ जाए तो उस केस में दैट विल बी हेल्पफुल, है ना। सो कंजेशन टैक्स वगैरह की बात करेंगे, इस तरह के कुछ आइडियाज दिया सकता है। नो कार डे का कॉन्सेप्ट होता है कहीं पे, जैसे कुछ सिटीज में बाहर में ऐसा होता है कि जैसे मान लो ये शहर है, इसमें डिक्लेयर कर दिया गया कि आज के दिन ये वाला रोड नो कार डे, यहाँ पे आप कार नहीं चला सकते इस रोड पर, ठीक है, एन एग्जाम्पल शुड पुट इनटू प्रैक्टिस एंड ऑल, ठीक है। तो इस तरह का कुछ आइडिया दे सकते हैं। या एक और दिल्ली में चला था, आपने सुना होगा ऑड इवन का रूल, यू रिमेंबर दैट, एक टाइम पर तो ऑड इवन भी किया आ सकता, बट उसमें ना बहुत सारे इश्यूज भी हैं, ठीक है, इतना एक्सेप्शंस दिया गया, दैट बिकेम अ प्रॉब्लमेटिक एंड ऑल, ठीक है। खैर फिर भाई GRAP की बात हो रही है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, मैंने बताया था। देयर आर 4 डिफरेंट सेट्स दैट गेट्स एक्टिवेटेड बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ एयर, दीस आर द थिंग्स दे आर टॉकिंग अबाउट, खैर, है ना। सो कॉल्ड सॉल्यूशन जैसा स्मॉग टावर एंड ऑल, बोले कि स्मॉग टावर या वाटरिंग रोड से कुछ होगा नहीं खास। आपने देखा होगा ट्रक्स वगैरह जाती है, वो पानी गिराती है रोड पर थोड़ा बहुत पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, बट इनका कहने का मतलब है कि जस्ट कॉस्मेटिक से इससे बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये सब चीजें, ठीक है। सो दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। ऑड इवन, नो कार डे, साइकिल वगैरह चलाना शुरू करें, वी शुड ट्राई दीज थिंग्स एंड ऑल, है ना। हाँ, दिल्ली में भी ऑड इवन था, यस, बट वो उतना शायद सक्सेसफुल कुछ हद तक हुआ था, यस। नाउ अगेन दे आर टॉकिंग अबाउट जो एडिटोरियल है, उसमें भी बात हुई है, दिल्ली एंड पार्ट्स ऑफ सराउंडिंग स्टेट्स पंजाब हरियाणा यूपी एनकाउंटर द एनुअल एयर क्वालिटी प्रॉब्लम। ये हमेशा की थे, 5-6 साल से प्रॉब्लम है, अक्टूबर नवंबर में खास के। सो इट इज एक्चुअली द प्रॉब्लम एंड ऑल, ओके। दिस टाइम द साउथ वेस्ट मानसून हैज रिसीडेड विद इट द ड्राफ्ट्स इन द अपर एटमॉस्फेयर, साउथ वेस्ट मानसून हैज रिसीडेड, यानी वापस जा रहा है ना। तो अगर एक्चुअली क्या होता है, रेनफॉल से जो होता है ना, पॉल्यूशन कम हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है और अच्छी से बारिश हो गई तो द पॉल्यूशन विल गो डाउन, इसलिए कि वो ये हो जाता है ना,
नीचे बैठ जाता है ना पॉल्यूशन एंड ऑल, है ना. So that is what they are talking about. Though there have been studies, commission, executive and all. यही सब बता रहे हैं कि बहुत सारा रिसर्च किया गया and all. अच्छा, एक चीज और आपको बताना चाहिए, दिल्ली में जो होता है ना वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है एज कम्पेयर टू मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एटसेट्रा. क्यों, कोई बता सकता है? देखो, एक और समस्या है, वो है वाटर बॉडी. ठीक है, देखो दिल्ली जो है ना वो लैंड लॉक्ड है. ठीक है, यमुना रिवर है बट वो रिवर है ना, समुंदर नहीं है. अगर मुंबई में भी पॉल्यूशन होगा तो उतना शायद नहीं हो एज कम्पेयर टू दिल्ली. द रीजन इज समुंदर है. सिमिलरली कोलकाता में भी, सिमिलरली चेन्नई में भी. बट दिल्ली चूंकि एक लैंड लॉक जगह है, इसके आसपास कहीं पे समुंदर नहीं है, इसलिए पॉल्यूशन बहुत देर तक होल्ड किया रहता है इस रीजन में. दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग इशू. ठीक है, हाँ, तो एक कारण ये भी होता है. कई बार ऐसे मैंने देखा है, पूछते हैं कि क्यों न्यू दिल्ली में क्यों इतना पॉल्यूशन आता है, ये सब जगह क्यों नहीं होता, यहाँ भी तो है बड़ी सिटीज, है ना. सो वन रीजन इज दैट. और भी रीजन है, इधर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, कई बार मेडिटेरेनियन सी से सैंडी डेजर्ट, सैंडी हवा चलती है. ठीक है, देयर आर मेनी रीजंस. So Commission for Air Quality, which is tasked with addressing the cause of air pollution and adjoining state, is now body packed with expertise and all, are limited to evoking and recommending grades. अच्छा, यही है कि इन लोग रिकमेंडरी बॉडी होती है सब, तो ये खाली रिकमेंड कर सकते हैं. मेन तो डिसीजन तो गवर्नमेंट को ही फाइनली लेना है ना. दीज आर द थिंग्स. देखो 450 सीवियर चला गया है, दीज आर द थिंग्स, है ना, इस रीजन में हो गया. वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इट. While there is a greater awareness and action to curb the sources of action, November, which was in recent years emerged as a critical month for pollution, remains tamed and all. तो ये बता रहे कि नवंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीना में ज्यादा पॉल्यूशन देखा जाता है ना. So these are the things being talked about. Now let's move on to the next one. Much to do if Indian veterans in Qatar case festers. I hope you are aware of this case. ये तो पता होगा आपको. देखो, जो एक्चुअली कतर में the former naval officer sentenced to death and all, almost 8 I think. सो उसी पर वो आर्टिकल लिख रहे. फेस्टर्स मतलब होता है कि मामला और खराब हो जाना. सो दैट्स एक्चुअली फेस्टर्स, मोर इंटेंस, है ना. सो ही इज एक्चुअली हिमसेल्फ इज अ रिटायर्ड इंडियन नेवी टेस्ट पायलट. सो ये खुद इंडियन नेवी में रह चुके हैं. ठीक है, सो दैट इज व्हाई ही इज राइटिंग इट. इस तरह का न्यूज आया था, 8 नेवी वेटरन सेंटेंस टू डेथ इन कतर एंड ऑल. While the charges against the 8 remain unclear, यानी क्लियरली बताया नहीं गया, मतलब ओपनली ऑफिशियली कि व्हाट इज एक्चुअली द चार्जेस, है ना. तो उसको कॉन्फिडेंशियल रखा गया है. सो दीज आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग इट नाउ. सो दीज आर द 8 पर्सन. देखो आप मोस्ट ऑफ देम देखो रिटायर्ड लिखा है, नहीं सारे जो है ना मोस्टली सीनियर पर्सनल है ना, 50s 60s में मिनिमम होंगे. ओके, मतलब यंग लोग नहीं है इसमें मोस्टली. एंड ही हैज एक्चुअली गॉट रिसेंटली एन अवार्ड 2-3 years बैक. प्रवासी भारतीय अवार्ड भी इनको मिला था. ओके, प्रवासी भारतीय दिवस होता है ना, सो विच एक्चुअली हैपेंस ऑन 9th January. प्रवासी भारतीय दिवस या NRI डे. ओके, एंड ही वाज अवार्डेड समथिंग, आई थिंक इन 2019 ही वाज अवार्डेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो खैर ये सब चीजें. सो दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. इंडिया वाज प्रेजेंटेड विद अ फॉर्मिडेबल डिप्लोमेटिक चैलेंज. फॉर्मिडेबल मतलब बहुत अच्छा, स्ट्रॉन्ग चैलेंज, यानी बिग चैलेंज के सेंस में. ठीक है, ऑन October 26 एक बड़ी चैलेंज है, डिप्लोमेटिक चैलेंज है, व्हेन 8 फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिशियल्स वेर held in Qatar on unknown charges since 30th August last year. वो 30 अगस्त लास्ट ईयर से ये वाला मामला चल रहा है. ओके, और अभी जो है कोस्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस सुना है, अभी 2 और अपील किया जा सकता है. विल शो इट. ठीक है, अभी 2 और जगह है जहां पर अपील किया जा सकता है. सो विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. देयर फैमिलीज वेर होपिंग दैट बैक चैनल एफर्ट्स माइट सिक्योर. बैक चैनल एफर्ट्स मतलब डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, है ना, कि बातचीत करके कुछ सॉल्यूशन निकल जाए. सो इंडियन गवर्नमेंट हैज सेड वी आर डीपली शॉक्ड ऑन दिस. And first of all, the 8 veterans receiving maximum punishment seems to be unexpected outcome. ठीक है, so ये maximum punishment है ना किसी का, तो ये unexpected है. The opacity of the charge. Opacity मतलब क्या होता है? Transparency का opposite. Opposite of transparent. यानी इसका कहने का मतलब, इस आर्टिकल का मतलब हुआ कि the complete secrecy means it has not been completely revealed what are the charges when they have been convicted and all. So that is what the author is talking about. Then ये सारे जो वेटरन्स थे, they were working for an ओमानी कंपनी दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी. इसके लिए वो लोग काम कर रहे थे. ओके, विच इज बेस्ड इन दोहा, विच इज द कैपिटल ऑफ कतर. ये सब तो पता होगा. अच्छा, अब देखो कतर न्यूज में, सो यू शुड बी नोइंग इट. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कतर, करेंसी. ठीक है, हु इज द हेड ऑफ कतर. ओके, सो इंडिया कतर रिलेशन कब स्टैब्लिश हुआ, वेदर वी हैव अ गुड रिलेशन और नॉट. ठीक है, ये सब चीजें पता होना चाहिए, है ना. द कंपनी जब ये मामला हुआ, द कंपनी वेबसाइट वाज डीएक्टिवेटेड सून आफ्टर न्यूज ब्रोक ऑफ द नेवल फोर्स बीइंग इनकार्सरेटेड. इनकार्सरेटेड मतलब वही जेल्ड, अरेस्टेड.
सो कंपनी की वेबसाइट को डीएक्टिवेट कर दिया गया, कंपनी बंद कर दिया गया. दीज थिंग्स वेर एक्चुअली देयर इन द न्यूज. The company and the kind of work it was doing was needs deeper examination. The area of expertise that there was in training the Qatar Emiri naval forces. तो इनका मेन काम था कि कतर के नेवल फोर्सेस उनको ट्रेन करना है और ठीक है. सो दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. कतर एज ए यूनिट डेमोग्राफी वेयर एक्सपर्ट राइट्स एंड ऑल. अब देखो एक्सपैट समझते हो जो फॉरेनर्स, यानी कतर में एक्चुअली क्या है. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो वेयर एग्जैक्टली इट इज. हियर इज इंडिया, दिस इज सऊदी अरब. ये वाला जो ना इसको कतर है, दिस वन. ठीक है, कैपिटल इसकी दोहा है. ठीक है. अब देखो कतर में मोस्टली एक्सपैट्स, जैसे बहुत से लोग इंडिया से जाते हैं, पाकिस्तान से जाते हैं, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ से जाते हैं, जॉब करते हैं. सो आप ये बता ये रहे हैं कि एक्सपैट्स जो यानी फॉरेन पीपल जो है वो ऑलमोस्ट 88% है ना. 88% माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो बाहर से आते हैं. एंड इट इज वन ऑफ द वेल्थिएस्ट कंट्री एंड ऑल. आई होप यू आर अवेयर, है ना. So the writer is aware of requests made in 2006 and 2008 from various levels of Qatari establishment QNF to provide training. जो कि खुद ऑथर जो हैं जो लिख रहे हैं वो खुद नेवी के ऑफिसर रह चुके हैं. तो वही बता रहे हैं कि 2006 और 2008 में हमको मालूम है कि QENF ने रिक्वेस्ट किया था कि ट्रेनिंग के लिए कतरी एस्टैब्लिशमेंट QNF टू प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर देयर सेलर्स एंड जूनियर ऑफिसर्स. ठीक है. सो दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. हाँ अब देखो क्या है, कतर जो है एक चीज के लिए बहुत फेमस है, इंडिया को एक्सपोर्ट करता है, वो है नेचुरल गैस. यस, कतर का नेचुरल गैस बहुत अच्छा मतलब फेमस माना जाता है. दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. हाँ ओके. एक चीज बताना, मैंने एक्चुअली कम्युनिटी सेक्शन में क्वेश्चन भी दिया था. आई होप मेनी पीपल हैव अटेम्प्टेड इट. ठीक है. व्हाट इज द नेम ऑफ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड कतर. मैं क्यों पूछा हूं ये, इसका वजह है इसलिए कि बिकॉज इंडियन नेवी इज इन द न्यूज, देन इंडिया कतर रिलेशन इज इन द न्यूज. इसीलिए जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड कतर, उसका नाम बताना है. 𝗟𝗲𝗴𝗪 करके कुछ है ना. So we have I had shown it actually in the community section. Go and attempt that question, है ना. So you should be knowing it. Yes, we are talking about by this time Commander Purnendu Tiwari, जो कोई नहीं के बारे में मैंने बताया, a distinguished naval veteran had created a successful enterprise in Singapore. तो उनका सिंगापुर में उस टाइम पर कंपनी था, एंटरप्राइज बिजनेस था. ठीक है. So the time was ripe to replicate model in Qatar. तो इसी तरह का वो लोग कतर में भी ओपन करना चाह रहे थे. ठीक है. So these are the things being talked about कि they are talented officers men retiring from Indian Navy. So बहुत सीनियर ऑफिसर्स वगैरह हैं लोग, है ना. CDR में तो वही कमांडर. ठीक है. एंड यस, कमांडर तिवारी वाज गिवन अवार्ड इन 2019. प्रवासी भारतीय दिवस सम्मान, है ना, वाज गिवन टू हिम बाय प्रेसिडेंट, द देन प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद. हाँ, he is the first Indian Armed Forces veteran to be awarded this honor meant for non-resident and a person of Indian origin. ठीक है. So these are the things you should be knowing about it. Okay. India's defense veterans were delivering a sterling project. तो बहुत अच्छे मतलब वही हो रहा था कि जब QENF ने बुलाया था ट्रेनिंग वार करने के लिए, so they were training it and all these other things being talked about. खैर इसमें अब आपको ना चीजें पता होनी चाहिए. कैपिटल क्या है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, ठीक है, 40% अरब्स रहते हैं, कतरी रियाल इसका करेंसी है ना. इंडिया कतर रिलेशन established in 1973. The head of the Qatar actually he visited in March 2015 India. और आई थिंक 2016 वगैरह में आप एक बार चेक कर लेना कौन से ईयर में PM मोदी ऑल्सो विजिटेड कतर. और इस तरह की बात है, कतर इज द सेकेंड होम एंड ऑल इस तरह. सो गो एंड रीड समथिंग अबाउट दैट एज वेल. ठीक है. अब इसके अलावा 2 अपील्स बची हुई है. ठीक है. सो वन अभी देयर आर 2 लेवल्स. जैसे इंडिया में कैसे होता है, लोअर कोर्ट है, फिर आप हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं ना, समथिंग लाइक दैट. वहां भी कुछ होगा इस तरह का. So after passing a judgment, there is one is called as court of appeals है, and another appeal is court of cassation. ठीक है. So 2 जगह स्कोप है अपील करने का. So let's see what will happen. Emir has the power to pardon. उसके बाद अमीर का, जैसे इंडिया में होता है ना, president has power to pardon it, है ना. कौन से आर्टिकल के अंडर में होता है, इस आर्टिकल Article 72. So similarly, Amir मतलब the Emir has the power to pardon or offer clemency. So the king has power there कि वो किसी का सेंटेंस रिड्यूस कर सकते हैं. Very similar to like case in India. हाँ, Article 72 के अंदर इंडिया में होता है. So Qatar does not have a long history of executing people. So कतर में बहुत ज्यादा फांसी देने की सजा नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा हिस्ट्री में बहुत कम दिखा गया, मतलब उतना ज्यादा नहीं है. That is what they are talking about. But he's saying कि most of the veterans are in late 50s and 60s. Even if the death sentence is commuted to life, they face the prospect of spending the rest of the life in the behind bars. अब ये बता रहे हैं कि जो most of them जो है 50s और 60s के एज में,
तो अगर फांसी से रिड्यूस करके मान लीजिए लाइफ सेंटेंस दे दिया जाए जो कि 25 साल के अराउंड है, तो भी लगभग समझो 75, 80, 85 साल के हो जाएंगे जब जेल से निकलेंगे. सो मेनी ऑफ देम माइट डाई, और मतलब बहुत मोस्ट लाइकली, या हो सकता है बहुत एजेड होने के बाद जेल से निकले. दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड. द टेरिबल टर्न ऑफ इवेंट्स कुड नॉट हैव कम एट अ मोर इनऑपर्चून जंक्चर फॉर द वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज. दारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी इज नो लॉन्गर ग्लोबल कंसर्न. तो ये सब बता रहे हैं कि दारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, दारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी के बारे में. दैट्स ओके. यस. फिर एक दो चीज और है. कतर इज अ फ्रेंडली कंट्री एंड देयर इज एन एग्जिस्टिंग बायलैटरल एग्रीमेंट टू एक्सपैट्स कन्विक्टेड सिटीजन. आर्टिकल 4 ऑफ दैट एक्सक्लूड्स द डेथ पेनल्टी. ठीक है. सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. अच्छा, एक चीज ये जीसीसी से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए. इसको पढ़िएगा, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल. इसके कितने मेंबर्स हैं? प्लीज गो एंड रीड इट. ओके. हाउ मेनी, वेदर कतर इज अ मेंबर और नॉट. ठीक है. Then he's saying that I hope that Indian political leadership will rise the challenge and appeal to the emirs and all. तो वो लिख रहे हैं कि हाँ, मेरी उम्मीद है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो रिक्वेस्ट करेगी अमीर से, यानी जो किंग है वहाँ के, उनसे कि जो इनके जो ये केस है उसको थोड़ा सा मतलब बेनेवोलेंस शो किया जाए. दैट इज व्हाट, मतलब काइंड हार्टेडनेस, दैट्स बेनेवोलेंस, दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. ओके. रेवेन्यू रिबाउंड, अक्टूबर जीएसटी कलेक्शन मार्क शिफ्ट फ्रॉम रीसेंट ट्रेंड्स. अच्छा, आपको पता होगा विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जीएसटी रेजीम. कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये बताइए. सेकंड थिंग इज जीएसटी डे कब मनाया जाता है. ये सब फेमस है, इजी क्वेश्चन है, यू कैन आंसर इट, है ना. जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया, 1.72 लाख करोड़ हो गया. दीज थिंग्स यू शुड बी नोइंग इट. अच्छा, ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री टू ग्रांट वोटिंग राइट्स टू वुमेन. हाँ देखो, 101 जो है अमेंडमेंट जो है जीएसटी से रिलेटेड है, और 1 जुलाई जो है जीएसटी डे है. ठीक है. फर्स्ट कंट्री टू ग्रांट वोटिंग राइट्स टू वुमेन. यस, न्यूजीलैंड, है ना. 1890s वगैरह में दिया था. यस, ये पता होना चाहिए इस तरफ चीज. ठीक है. सी इज द राइट आंसर. ओके. एक्चुअली उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है. इज अ डीसीपी, इज एन आईपीएस ऑफिसर फ्रॉम दिल्ली पुलिस, एंड ही हैज रिटन एन आर्टिकल. एक्चुअली वो कंपेयर करे ओडिशा एंड ऑकलैंड के केस को. ऑकलैंड जो है न्यूजीलैंड में एक जगह. ठीक है. तो अब इतना डिटेल जाना नहीं है कि इन दोनों कंपेयर करें कैसे इलेक्शन होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, देन न्यूजीलैंड में कौन सा सिस्टम है. ठीक है, इतना नहीं जाना है, बट ये पता होना चाहिए फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. फर्स्ट, ये आप जानते हो, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी जिसका सबसे ज्यादा वोट मिल गया वही जीत गया. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बताता हूं, जैसे 5 लोग ए बी सी डी ई, 5 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं. ठीक है. अब कई सारे लोग वोट करेंगे. ऑल 5 आर एक्चुअली द कैंडिडेट्स. सो हूसोएवर गेट्स द मैक्सिमम वोट, एक को 100 वोट मिला, एक को 101 मिला, एक को 97 मिला, एक को 95 मिला. ठीक है, एक को 84 मिला. तो जीतेगा कौन? हु इज द विनर? सो विनर इज बी. ठीक है. इसको कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. ओके. इसमें ये कोई गारंटी नहीं है कि बी को हाफ मार्क क्रॉस करना चाहिए. फॉर एग्जांपल, जैसे टोटल लोग कितने होंगे, मान लीजिए टोटल ऑल द वोटर्स, कुछ नॉन ऑफ द अबव भी हैं, टोटल मान लीजिए वोटर्स जो है 700 लोग हैं, वोट किया. तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 700 है तो 350 वोट मिलना ही चाहिए, हाफ मिलना ही चाहिए. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. बस बाकी लोगों के मुकाबले सबसे ज्यादा सीट हो, वोट हो, तो वो जीत जाएंगे. ऐसे ही होता है ना इंडिया में. So that's actually called as first past the post system. ठीक है. That's called as, है ना, यानी मेजॉरिटी ऑफ वोट्स नहीं, प्लूरलिटी ऑफ वोट्स चाहिए. मेजॉरिटी ऑफ वोट्स में ऐसे नहीं कि टोटल 700 वोट पड़ा तो कम से कम आधा वोट आपको पड़ना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. अगर आपको बाकी के मुकाबले अगर एक भी ज्यादा मिल गया तो आप जीत गए, एमपी बन गए, है ना. इसको कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. मैं क्यों बता रहा हूं? बिकॉज एक्चुअली लास्ट ईयर जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रेसिडेंट के केस में ये वाला होता है. ये पूछा था, मैंने पढ़ाई भी था पेड क्लासेस में, कि प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड थ्रू, तो उसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट विद सीक्रेट बैलेट. ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, आपने देखा होगा ऑप्शन. तो प्रेसिडेंट के केस में पीआरएसटीवी होता है, बट जनरली जब एमपी एमएलए का इलेक्शन होता है तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से होता है. ठीक है, आई होप समझ गए होगे आप इसको, है ना. हाँ, इंडियन एनवॉय टू कनाडा कौन है बताइए तो. Please tell me. He is also in the news, so that is why you should be knowing it. अच्छा, एक और आपको बताना है कि कैनेडियन एम्बेसडर who was expelled from India, कनाडा के जो ऑफिसर थे जिनको फॉरेन सर्विस ऑफिसर was expelled. Yes, Mr. संजय कुमार वर्मा. So actually Indian envoy asked Canada for evidence in just killing. तो उन्होंने पूछा है
एक्चुअली क्या हुआ था कि नेचर्स किलिंग में, so the prime minister of Canada has put allegation that Indian government was responsible and all. So that is why Indian envoy has asked for evidence कि आप proof दिखाइए, कोई आपके पास कोई क्या proof है, what you are putting an allegation and all. So he is Mr. Sanjay Kumar Verma. ठीक है, okay, yes. और इंडियन एक्सपेल्स कैनेडियन डिप्लोमेट कैमरून मैके, इनका भी नाम याद रखिएगा, आपने देखा होगा, ये एक्चुअली वाज वेरी मच इन द न्यूज फ्यू वीक्स बैक. सो कैमरून मैके वाज एक्सपेल्ड बाय इंडिया, इज इंडियन कैनेडियन डिप्लोमेट, सो यू शुड बी नोइंग इट. आज 9 बजे मुलाकात होती है. प्लीज 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 डू ज्वाइन इट, दैट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. विल बी डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट अवार्ड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज. सो विल बी मीटिंग यू एट 9 PM टुडे. So this is all about today's class. एक वन शॉट रिविजन सीरीज है जो हम लोगों ने चलाया है कल भी, yesterday also we discussed it, so please do watch it, which we are doing it on Sunday 1 PM. ठीक है. So this is all about today's class. Please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download the BYJU'S exam prep app. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.